ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋ ਭਾਈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਸਭ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਥਿਰਤਾ ਦਾ ਘਰ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਮੈਂਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸਾਈਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੰਦਾ ਕਰਤੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਰਤ ਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਰਤੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਚ ਕਰ ਹਮ ਸਕੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਝੱਖੜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਵੇਖ, ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੇਖ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਚਲੋ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੀ, ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖ ਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਫਕੀਰ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦੱਸ ਫਿਰ ਰਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੱਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਰਹਿ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੈਠ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧ ਖੇੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ
तू मैनू मिलिया तू भी तो यही दावा करके कह रहा है, मैं तेनू ये गल समझा दिया, ना ते तेरा दादा रहा है, ना तेरा पिता रहा है, ते ना ही तू रहना है। दस जेड़े रहिंदे सन वो नहीं रहे, वो अपनी जिंदगी दियां रातां अपने जिंदगी दे दिन कट के चले गए। ते फिर रैन बसेरा ते ओनू ही कहंदे आ जिथे बंदा दिन ते रात कट लै। रैन बसेरा धर्मशाल तां ओनू ही कहंदे आ जिथे रात कट्टी जावे। दस मेरे धर्मशाल ना हुई ते की होया? जदों तेरा दादा भी चला गया, तेरा पिता भी चला गया, रहना तू भी नहीं। दस तू फिर कादे दावे बनदा? तू अपने आप नू क्यों करता मन के बैठा होया? क्योंकि सब दा पैदा करने वाला ते वो रब है। जिन्ना चीज़ां ते असी अज दावे करदे आ ना, सतगुरु गुरु नानक महाराज जी कहंदे आ ये जिन्नी भी धरती है ना, ये बनाई रब दी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है। ਤੇ मैं एक बड़ी ਵਧੀਆ गल पढ़दा सां एक दिन, कहन लगे बंदा इंतकाल कराउंदा जमीन दा, पहला हुंदी है रजिस्ट्री, उस तो बाद हुंदा इंतकाल। जदों इंतकाल हो जाता ना, वो जमीन तुहाडे नाम हो जाती है। दुनिया की फिर कोई ताकत, दुनिया का कोई बंदा उन्होंने तुहाडे कोलों फिर जुदा नहीं कर सकता, लख यतन कर लै, इंतकाल हो गया। दूजी गल कह लगे जदों बंदा मरदा है ना, बंदे दा इंतकाल हुंदा है, फिर जमीन दे विच ये समा जांदा है, फिर ये जमीन दा हो जांदा है। फिर जमीन दे विचों बंदे नूं कोई नहीं कढ सकदा। पहला इन्हें जमीन दा आप इंतकाल कराया, जदों जमीन ने इहदा इंतकाल किया, फिर इनू जमीन विचों कोई ना कढ सकिया। बस यही कहानी बंदे दी, जेड़ा अज दावे करदा ना कि भी आ भी मेरा, जेड़ा सारी जिंदगी मेरी मेरी करते जन्म गयो, जिहदा जन्म ही चला गया। सतगुरु जी कहंदे वो बंदा कदी समझ ही नहीं पाउंदा कि भी सतगुरु जी कहंदे रोज रह रास पढ़दा है, रोज तेनू गुरु समझाउंदा है, तू करता सचियार मैंडा साई, तू करता है, तू सब नू पैदा करने वाला है, तू सब दे सिर दा साई है। हे वाहिगुरु मेरी तेरे अगे कोई पाया नहीं है, मैं किन्नी कु वड्डी छाल मारांगा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी विच एक बचन आपां पढ़दे हां, गाए वगाए इस बचन की विचार भी हुंदी रहिंदी है। हालांकि आ जदों चलदी सी बीमारी उस समय ते ये बहुत ज़्यादा आपां बचन विचारिया। सतगुरु जी कहंदे बंदिया किन्नी कु छाल मारेगा? 10 पलांगा मार लेगा, 10 फुट जमीन तेरी हो जाएगी, 20 40 50 60 किन्नी कु मार लेगा? सतगुरु जी कहंदे तेरे वर्गियां ने पता नहीं किन्नियां कु छालां मारियां ने, पता नहीं किन्नियां कु छालां मार रहे ने ते मारनगे, पर कदी उन्हां मारन वालियां नूं तूं पुछया कि भी तुहानूं कुछ हासिल होया? या जिहड़े मार के चले गए ने संसार तो, तू कदी उन्हां नूं ये जवाब पुछया कि भी तुसीं की हासिल कीता? सतगुरु जी कहंदे जे उन्हां ने कुछ हासिल नहीं किया तो हासिल तू भी कुछ नहीं कर पाउणा, क्योंकि गुरबाणी कहंदी है सबनी छालां मारियां करता करे सो होए। क्यों? तू करता सचियार मैंडा साई, तू सब दे सिर दा साई है। अगली पंक्ति में सतगुरु जी कहते जो तो भावै सोई थिसी, जो तू दे सोई हो भाई। जो तेनू भाउंदा है ना, जो तेनू चंगा लगदा है, हे परमात्मा हुंदा उही है। बंदे दे चंगे मंदे करन दे नाल कुछ नहीं हुंदा। एवें सानू एक वहम जिहा है कि भी फलाणे ने मैनू आ कर दिता, गवांढी ने मैनू आ कर दिता। कोई किसी दे नाल कुछ नहीं जे करदा। बाणी पढ़दे सानू क्यों नहीं इन्हां पंक्तियां ते विश्वास आउंदा कि करन करावन प्रभ एक है दूसर नाहिन कोई। आपां पढ़दे जरूर आ इन्हां पंक्तियां नूं,
पर चेते रखना इन्हां पंक्तियां नूं पढ़दिआं विश्वास किन्ना कु है कि भी सब कुछ रब करदा है। जे ये विश्वास बंदे दा बन जे ना कि भी करन वाला करता रब है, फिर बंदा रब दे भाणे विच चलदा, बंदे दा एक बैलेंस जिहा बन जांदा कि मैं उस बैलेंस विच तुरना है, चलना है, अपनी जिंदगी नूं जिउणा है। अज साडी जिंदगी दा बैलेंस क्यों नहीं बन पा रहा, आपां क्यों बार बार पैर पैर ते लड़खड़ा रहे हैं? उहदा कारण है क्योंकि सानू दूजियां दे उत्ते गिला है कि भी इन्हें मेरे नाल सब कुछ किया है, हो सकता है कि पिछे तू उहदे नाल वध इदू कर लिया होवे। ये तां बंदा जिहो जिहा जिहदे नाल करदा है ना दोष कर्मा अपने दोष के अनुसार ही एक रब ने सिस्टम बनाया, उस हिसाब दे नाल चली जा रहा है। जिहो जिहा बंदा किसी का करेगा उहो जिहा उहदा कर्म बन के उहदे अगे आ जाएगा। पर जे बंदा इस गल नूं समझ ले कि भी रब आ कुछ करदा है, फिर बंदा रब दे हुक्म दे अंदर आउंदा है, ते जदों हुक्म दे अंदर आ जांदा है फिर बंदा कदी भी कदम गलत नहीं पुट्टदा। फिर बंदे नूं पता लग जांदा जो तो भावै सोई थीसी, जो तेनू भाउंदा है ओही तू करदा है क्योंकि वो तेनू चंगा लगदा है। एक इत्थे मैं बेनती होर आप जी दे चरनां विच करां, साडा मन जिहड़ा है ना, साडा अंदर जिहड़ा है, असी पता की चाहुंदे आ, फलाना बंदा जिहो जिहा मैं चाहुंदा ना उहो जिहा करे, कह लो कि भी जो मैं कवां वो हो जाए। बस जो चीज़ संसार ते आपां दूजे ते थोप के कराउणा चाहुंदे आ ना, उही सेम चीज़ असी रब दे नाल गुरु दे नाल करदे आ। गुरु भी उही करे जो मैं चाहुंदा, रब भी वो करे जो मैं चाहुंदा। हुण चेते रखना तुहाडे चाहण दे नाल ना चाहण दे नाल रब ने अपना फैसला थोड़ा बदल लेना। हुण सामने बैठा जज ते जिहड़ा दोषी है वो कचहरे दे विच खड़ा होया, हुण सारे दोष उहदे सिर ते मड़े जा रहे हैं, तो दोषी करार दिता जा रहा वकील वालों। हुण वकील ने कह दिया कि भी सारा कुछ इहदे दे उत्ते ही आ रहा है, जज साहब तुसीं फैसला करो की करना है। हुण दोषी कहे कि भी सारा कुछ तो मेरे ते ही आ रहा, जज साहब तुसीं बदल दो बयान, मेरे चंगे दे लई बदल दिओ। जज आखेगा तू दोषी है, तू चंगा कदों तो हो गया, तू आ गुनाह किया है, तू गुनहगार है, ते मैं तेरे गुनाहगार नूं माफ किवें कर दियां? वो अपना फैसला सुनाएगा। बस रब भी ये है, असी उस गुनाहगारां दी लैन विच खड़े हाँ, आपां उन्हां पाप करन वालियां दी लैन विच खड़े हाँ, ते रब ने कहना तू गुनाहगार है, तू दोषी है, दस मैं तेनू किवें तेरे हक च फैसला दे दियां। एक बेनती होर सुनियो, हो सकता दोषी गुनाहगार भर के बैग पैसों का जज के अगे सट दे, ते दुनियावी जज अपना फैसला बदलता है। हो रहा इस तरह हुंदा है, संसार है, कुछ भी हो सकता, किते भी कोई भाना वापर सकता है। दोषी बाहर हो सकता है तो जिहड़ा सच्चा है वह जेल के अंदर हो सकता है। तो इस तरह हो भी रहा है, हो नहीं रहा, इतिहास में होया भी है। इस तरह होया है, बाबर सच नूं जेल दे विच बंद करके बैठा है, झूठा बाबर आप बाहर घूम रहा। तुसीं आप अंदाजा लाओ सजा किनू मिलनी चाहिए है, किनू अंदर होना चाहिए, किनू बाहर होना चाहिए। ये आप सोचण वाली गल है। मैं बेनती करां, इत्थे तां भर के बैग पैसों का जज अगे सुट के जज नूं अपने हक विच कीता जा सकता है। जिहड़ा धन गुरु नानक पातशाह है, जिहड़ा गुरु परमात्मा है, वो तां रोज एक गल कहंदा, उत्थे सच्चो ही सच निबड़ै। वो तां सच दा निबेड़ा करदा है, वो तां रोज कह रहा उत्थे सच्चो ही सच निबड़ै, चुण वक कड़े जजमालिया, थाओ ना पायन कूड़ियार, मुँह काला दोजक चालिया, जो तो भावै सोई थीसी। हे परमात्मा, जो तेनू चंगा लगदा है ना, जो तेनू भाउंदा है ਉਹੀ संसार ते होना है। किसी दे कीते दे नाल, चंगे माड़े दे नाल कुछ नहीं होना। तू जिन्नियां मर्जी बंदियां अपनियां ला लै, ताकत ला लै, जोर ला लै, बल ला लै,
तेरा बल रब दे अगे हारेगा ही हारेगा। ते सतगुरु जी अगे कहते आ, जो तू दे सोई हो पाई। हे वाहिगुरू तेरे कोल दातां दे भंडार लगे हुए ने, ते दातां दे भी भंडार ये नहीं कि भी तेरे कोलों खो के मैं लै लांगा, जबरदस्ती तेरे नाल मैं कर लांगा। इत्थे तां जबरदस्ती किसी कोलों चीज़ खोई जा सकती है, बच्चा वड्डे कोलों खो सकता है, वड्डा बच्चे कोलों खो सकता है। पर जिन्हों रोज़ आपां कहने आ वड्डा साहिब वड्डी नाई, उस वड्डे दे कोलों की खोवांगे आपां कि तुसी मैं अज तक उहदे कोलों कोई चीज़ खो के लै सके हाँ? आपां तां सगों उहदे अगे रोज़ हत्थ जोड़ के अरदास करदे हां, दाता जे मैं खो नहीं ना सकदा ते मेरे कोल ते मंगण दी भी ताकत नहीं, तू किरपा कर मैनू आपे ही दे दी। अगे जाके आपां बचने साझा करदे हां। सतगुरु जी कहते जो तू दे सोई हो पाई। हे वाहिगुरू जो तेनू चंगा लगदा है वो तू सब नू दिना है, सब तेरी तू सब नहीं ध्याया। हे प्रभु सारी सृष्टि तेरी बनाई हुई है, भावे सारा संसार ये जगत नू तू पैदा किया होया, दूजा कोई नहीं इस जगत नू पैदा करने वाला। अगे कहते सारे जीव तेनू ही सिमरदे ने, जिन्नू मैं वेखदा सारियां दे मुख ते सारियां दी रसना ते तेरा ही नाम है। सारे कह रहे कि रब्बा तू 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 ही तू है, ते जेड़े तू तू कहंदे सन वो तू दे विच ही समा गया। मैं ते आ कुछ वेख्या गुरबाणी दे विच उन्हां दा जिक्र आया जेड़े रब नू सिमरदे आ, रब नू जपदे आ, जेड़े रब नू ध्याउंदे आ। सतगुरु जी कहते वो तू तू दे विच ही समा जाते। तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। कह लगे रब्बा सृष्टि तेरी सी, तेनू ध्या के तू ही हो गए। आपा मैं नहीं होना, मैं नू मिटाउणा है। क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं ना खुदा तां ही मिलता जे खुद ही मिटदी है। जे साडी खुदी दा मतलब है कि भी मैं, जे साडी मैं नहीं मिटेगी तो खुदा किवें प्राप्त होएगा, परमात्मा किवें मिलेगा? जदों तक साडी मैं उदों तक आपां रब नूं ध्या भी नहीं सकदे, रब नूं सिमरन भी नहीं सकदे। ते सतगुरु जी कहंदे आ सब तेरी तू सब नहीं ध्याया। हे वाहिगुरू सारी सृष्टि तेरी है, सब तेनू ध्याउंदे आ। अगे कहते जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। जिदे ते तू कृपा करदा है ना, जिदे तू बख्शिशां करदा है, वो नाम रूपी रतन नू पदार्थ नू प्राप्त कर लैंदा है। उन्हों पता लग जाता है कि भी नाम जिहड़ा उहदे कोलों प्राप्त होंदा है। उन्होंने यही नहीं पता लगता कि नाम उहदे कोलों प्राप्त होंदा, उन्होंने ये भी पता लग जाता है कि भी जिहदे कोलों मैं ये वस्त लैण जानी है ना, वो तां इहो जिहियां दातां दे नाल भरिया पिया है, वो तां था सागर है। उहदे बारे आपां रोज बचन पढ़दे हां, गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रोज़ तू इनाम दियां दातां, रोज़ तू वो बख्शिशां जड़ियां चुग सकदा है। हाँ शर्त है कि भी तू हंस बन के आ, बगला बन के ना आई। जदों हंस बिरती दे नाल आवांगे ना, इउं कह लो कि भी गुरमुख बिरती नाल आवांगे तां प्राप्त सब कुछ होएगा। जे आवांगे ही मनमुख बिरती दे नाल, सतगुरु जी कहंदे आ जड़ियां पहलियां दित्तियां कई बार वो भी खो लैंदा हुंदा है। इस करके गुरमुख लादा मनमुख गवाया। अगे गुरमुख ते मनमुख की गल की। गुरमुख ने लादा दा अर्थ एक ना पंजाबी बोली दे अंदर, अपनी ठेठ पंजाबी दे अंदर एक शब्द वरत्या जाता है लब्भा। ये पंजाबी का वचन है, बोल है लब्भा, भाव किसी चीज़ नूं लभ लेना। देखो किसी चीज़ नूं तुसीं खरीददे हो, उन्होंने ये नहीं कहते कि तुसीं ये मैनूं लभी है, क्योंकि वह तुसीं मुल धारिया, वो खरीद के लई हुई है। पर जिहड़ी चीज़ तुहानूं लभदी है ना, उहदे नाल ये शब्द तुसीं जोड़दे नहीं ये मैनूं लभी है। सतगुरु जी कहंदे आ
परमात्मा का नाम जिहड़ा है ना वो एक लद्दा की तरह लब्बे की तरह है, पर भागा वाला है वो जिन्नू ये नाम लभ जाता है। सतगुरु जी का एक वचन है आपां पढ़दे आ, सतगुरु जी कहते आ कि भी असल दे विच ये जिहड़ा नाम रतन है ना, हे परमात्मा तू ये त्रुट के मैनू दिता होया है, भाव तेरी बख्शिश दे नाल मैनू ये मिलिया होया है, तेरी बख्शिश ना होवे तां मैं कदी ये प्राप्त ना कर सकां। सतगुरु जी अगे कहते गुरमुख लादा, गुरमुखां ने इनू लभ लिया, मनमुख गवाया, मनमुख ने इस दात नू गवा दिता, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। हे परमात्मा तू आप ही विछोड़न वाला ते आप ही मिलाउण वाला है, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे। हुण इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझिओ। पहली गल ते ये समझो कि भी रब दरिया है ते आपां उस दरिया दे विच रहण वाले जीव हां। हुण जिन्ने भी जीव ने वो दरिया विच रहिंदे ने। सौखी जी एक उदाहरण आपां लै लैने आ, बड़ा वड्डा दरिया है, उहदे विच मछलियां रहिंदियां ने, मच्छियां रहिंदियां ने, आपस विच वो गल्लां करदियां ने कि भी बड़ियां गल्लां दरिया दियां हुंदियां ने। दरिया बड़ा वड्डा है, इन्ना वड्डा लोग उहनूं सलाउंदे आ करके। दूजी पहली नूं कहंदे कि भी तू कदी उहनूं वेखिआ? वो कहण लगी नहीं मैं कदी वेखिआ नहीं है। अपने वल्लों जतन वो बड़ा करदियां ने, पर एक दिन की हुंदा है, शिकारी आउंदा है, जाल पाउंदा है, उन्हां नूं बाहर कढ लैंदा है। फिर उन्हां नूं पता लगदा है कि भी जिहदे विच असीं रह रहियां सां ओही तां दरिया सी, जिहदे विच आपां आनंद दे नाल कदी इधर कदी उधर चलियां जांदियां सां ओही तां दरिया सी। बस आही कहानी साडी है, वो गल नूं अपने ते असीं टिका लईए कि भी आपां जिस विच रह रहे हां ना वो दरिया है। उहनूं सतगुरु जी दरिया कहिंदे आ। बस जदों असीं संसार तो चले जाने आ फिर सानू पता लगता है कि भी असल दे विच जिहदे विच रह रहे सां उही तां दरिया सी। इनू होर थोड़ा जिहा मैं सौखा कर दियां। असीं रोज़ एक दूजे नाल ये गल्लां करदे आ कि भी रब है। आपां भी कहने आ ना, जिवें मछली नूं कहंदी सी कि भी दरिया किन्ना वड्डा है, आपां भी कह रहे हैं रब किन्ना वड्डा है। अखीर हो जाती है साडी जदों संसार तो चले जाने आ, फिर पता लगता है कि भी रब दे विच ही तां कमलिया तू रह रहा सैं। उस दरिया दे विच रहिंदे आ तैनूं दरिया दा पता नहीं लगा, सारी जिंदगी तू लभदा रहा। सतगुरु जी कहंदे बंदे खोज दिल हर रोज, वो रब तेरे अंदर बैठा है, किते खोज के तां वेख दरिया तां सारा तेरे अंदर है। सो सतगुरु जी कहंदे तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है, तेरे तो बिना दूजा कोई नहीं, जी जंत सब तेरा खेल। इस पंक्ति नूं आपां कल दे दीवान दे विच विचारांगे, कोशिश करांगे जिहड़े तू दरियाओ सब तुझ ही माहे उसे पंक्ति तो दोबारा विचार जिहड़ी आरंभ करके अगला जिहड़ा शब्द दा सफर है उहनूं आपां सर कर सकांगे जी। इन्नी को बेनती प्रवान करिओ। बोलदियां पासों नेकां भुलां गलतियां हो जांदियां ने। सतगुरु जी गुरु की संगत बख्शणहार है, बख्श देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम